રેડી. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કરંટ ટોપિકમાં હું પીનલ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું ને આજે કરંટ ટોપિકમાં આપણે વાત કરી રહ્યા છે ધૂળેટીના પર્વને લઈને અને સૌથી પહેલા આપ સૌને હોળીની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. હોળીનો તહેવાર આવે એટલે દરેક વ્યક્તિ રંગમાં રંગવા માટે તૈયાર થઈ જાય, પણ હવે હોળીની ઉજવણીની રીત પણ બદલાઈ ગઈ છે. આપણે એ જોઈ શકીએ છીએ કે આપણા ત્યાં દરેક તહેવારની ઉજવણીની રીત હવે બદલાઈ છે. દરેક તહેવાર હવે ઘરથી બહાર નીકળીને ક્યાંક પાર્ટી પ્લોટ સુધી પહોંચી ગયા છે અને એમાં જ હોળી અને ધૂળેટીનો તહેવાર હોય જ્યારે ધૂળેટીના તહેવારમાં પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે હવે ઘરમાં જે હોળી લોકો પરિવારની સાથે રમતા જોવા મળતા હતા અને એના કરતાં વધારે લોકો પાર્ટી પ્લોટમાં ક્લબ્સમાં જે ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં આવે છે હોળીની પાર્ટી, તેમાં આપણને વધારે જોવા મળતા હોય છે. હોળીના થોડા દિવસ પહેલાંથી જ લોકો જેમ નવરાત્રિમાં થોડા દિવસ પહેલાંથી પાસીસના અરેન્જમેન્ટ કરતા હોય છે, એ જ રીતે હવે ધૂળેટીના થોડા દિવસ પહેલાંથી જ લોકો એની માટે પણ પાસીસના અરેન્જમેન્ટ કરતા આપણને જોવા મળતા હોય છે, કારણ કે પાર્ટી પ્લોટ્સમાં ડીજેના તાલ પર નાચવાની પણ લોકોને મજા આવતી હોય છે. એની સાથે સાથે રેઇન ડાન્સ હોય છે, એની સાથે સાથે બહુ અલગ અલગ ગેમ્સ થીમ્સ ને બધી હોવાના કારણે લોકો વધુમાં વધુ હવે પાર્ટી પ્લોટમાં ઉજવણી કરતા થયા છે. ત્યારે આ વખતની આ ધૂળેટીમાં YMCAમાં પણ રંગોળી 3.0 આ હોળીના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે કે જેની આ થર્ડ સિઝન છે કે જે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે, કારણ કે જે રીતે અત્યારે YMCAમાં દર વખતે જ્યારે પણ હોળીનું ઓર્ગેનાઇઝેશન કરવામાં આવે છે, ધૂળેટીની પાર્ટી કરવામાં આવે છે, ત્યારે લોકોને ખૂબ જ મજા પડતી હોય છે. ત્યારે ફરી એક વખત YMCAમાં આ જ રીતે જે ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં આવી રહી છે હોળી, તેને લઈને પણ ઘણા લોકો બહુ જ એક્સાઇટેડ જોવા મળી રહ્યા છે. ત્યાં આગળ ડીજેની સાથે સાથે તમને નાસિક ઢોલ પણ જોવા મળશે. સૌથી વધુ નાસિક ઢોલ, ડીજે અને એની સાથે સાથે તમારા મનપસંદ કલર્સ અને તમે જ્યારે આ પાર્ટીમાં જશો ત્યારે તમને વધુ શું જોવા મળશે. એની સાથે સાથે આ ક્લબમાં જે રીતે આ પાર્ટીનું ઓર્ગેનાઇઝેશન કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે સેફટીનું પણ કેટલું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે. દરેક વ્યક્તિ જ્યારે આજે ઘરથી બહાર પાર્ટી પ્લોટમાં જ્યારે હોળી રમવાનું વિચારે છે ત્યારે તેને શું શું જોઈતું હોય છે ને તેનું ધ્યાન આ પાર્ટીમાં કેટલું રાખવામાં આવ્યું છે તેના વિશે આપણે વાત કરીશું. જેની માટે મારી સાથે જોડાઈ ગયા છે આ જ રંગોળી 3.0 કે જેમને ઓર્ગેનાઇઝ કરી છે, તે ઓર્ગેનાઇઝર છે ભરત ચંચલાનીજી. ભરતજી, આપનું સ્વાગત છે. વેલકમ ટુ કરંટ ટોપિક. थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. बहुत अच्छा लगा. जी, तो भरत जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि होली धुलेटी ये जो त्यौहार है, जैसा कि मैंने कहा कि पहले हम देखते थे कि घर में ही लोग इस त्यौहार को मनाते थे, लेकिन अभी इससे मनाने की जो रीत है वो बदल गई है. क्या कहेंगे इस बारे में? आपको लगता है कि अब आपके आसपास के भी लोग हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं घर से ज़्यादा पार्टी प्लॉट्स में अब ये त्यौहार मनाना ज़्यादा पसंद करते हैं? ये आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, या मेरे ख्याल से सब लोगों ने, आपके दोस्त या रिश्तेदार सब लोगों ने ये फील किया होगा कि जब हम लोग पहले घर पे होली बनाते थे तो घर गंदा भी होता था, पानी का भी होली के अंदर एक बहुत अच्छा रोल होता है, और प्लस लाउड म्यूजिक जिधर लोग ज़्यादा तरीके से एंजॉय कर सके, डांस कर सके, मस्ती कर सके, वो स्पेस नहीं मिल पाता था. उस वजह से आजकल अब कुछ टाइम से, कुछ साल से होली को थोड़ा बड़े पैमाने में लोग सेलिब्रेट करना ज़्यादा पसंद करते हैं. जी, तो जब बात हम पार्टी प्लॉट्स की करें तो क्या लगता है आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ क्या होती है जिस वजह से लोग घर में नहीं लेकिन पार्टी प्लॉट में, आई थिंक सो, अगर आप डीजे की बात कर सके थे, म्यूज़िक की वजह से कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा पसंद करते हैं? म्यूज़िक बहुत ज़रूरी है मस्ती करने के लिए, क्योंकि एक कलर लगाने का, अगर आप 10 लोग, 15 लोग, 25 लोगों के ग्रुप में आए हो तो एक कलर लगाने के तरीके आप 10-15 मिनट तक चला सकते हो. उसके बाद में आपको कुछ ना कुछ चाहिए ऐसा जिससे आप और मस्ती कर सको. तो फूड हो गया, मॉकटेल्स, ड्रिंक्स वगैरह हो गया, दे वुड बी अ गुड फूड काउंटर हो गया. उसके अलावा धमाल मस्ती के लिए फुल ऑन म्यूजिक, अच्छे बॉलीवुड आर्टिस्ट की ज़रूरत है जो सबको अच्छे से नचा सके. कुछ ढोलीस की ज़रूरत है. इस बार हम लोगों ने बहुत कुछ नया भी ट्राई किया है जो बहुत अट्रैक्टिव है लोगों के लिए, नासिक ढोल. उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपका उद्देश्य इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का क्या ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आप काफ़ी सालों से, ऑलमोस्ट 15 ईयर से आप इस इंडस्ट्री में हैं, अलग अलग इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन ये जो इवेंट आपने ऑर्गेनाइज की, होली की इवेंट, इसके पीछे खास क्या उद्देश्य रहा है? देखो, अगर हम हमारे तजुर्बे की बात करूँ तो 15 साल के तजुर्बे में होली एक अकेला ऐसा इवेंट है जो मुझे ऐसा फीलिंग आया कि अहमदाबाद में हो रहा है कुछ 5-7 सालों से अच्छे लेवल पे, बट अगेन वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्राउड पॉइंट ऑफ व्यू, वो उस लेवल पे मेंटेन नहीं हो पा रहा था. ऐसा मेरे इवेंट लाइन का एक्सपीरियंस में मुझे लगा. तो 3 साल पहले हमने सोचा कि कुछ अलग लेवल पे, कुछ प्रीमियम लेवल पे इस होली को थोड़ा तरीके से बनाया जाए. तो फर्स्ट सीज़न में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया था. देन सेकेंड सीज़न अगेन अभी हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े हमारे लेवल से. दिस इज़ द थर्ड सीज़न व्हाट वी डूइंग. अभी इसके अंदर हमारा मेजर उद्देश्य होली के लिए ये है कि एक तो
किस तरीके का क्राउड वहाँ पे आता है, वो क्राउड को कैसे मैनेज करने का है, किस तरीके से किसी को डिस्टरबेंस ना हो और हर तरीके के लोग अपने लेवल पे एंजॉय कर सके, मस्ती कर सके विदाउट किसी को डिस्टरबेंस करे। म्यूज़िक किस तरीके से होना चाहिए, कौन से लेवल का आर्टिस्ट होना चाहिए, रेन डांस होना चाहिए, खाने पीने की पूरी सुविधाएं होनी चाहिए और जितना हो सके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू पे पूरा ध्यान रखा गया है, पार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू पे पूरा ध्यान रखना चाहिए। इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे हम भी हमारे तजुर्बे से और सीखते सीखते अभी हम ये लोग तीसरा सीज़न कर रहे हैं। जी, तो भरत जी, YMCA, आप YMCA क्लब के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ ऑर्गेनाइज करने का क्या रीज़न है खास? YMCA में ऑर्गेनाइज करने का एक तो उसका लॉन बहुत अच्छा है, उधर मुझे पार्किंग का स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है। गेस्ट को, जो भी लोग आते हैं इनवाइटीज गेस्ट, उन लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है वो सब चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए। और सपोर्ट टीम YMCA का अच्छा है इन टर्म्स ऑफ कि किसी को भी कोई भी अरेंजमेंट्स करने हैं तो उनका पूरा साथ रहता है। जी, और ऐसा कह सकते हैं भरत जी कि YMCA के नाम से भी काफ़ी लोग ये समझते हैं कि हाँ, एक क्लास मिलेगा और एक प्रीमियम पार्टी होगी, ऐसा एक इमेज है, ऐसा मान सकते हैं। अभी अब हम बात करें इस इवेंट को लेके, तो डीजेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोग ना ये भी जानना चाहते हैं कि जगह के साथ अगर दूसरी उनकी प्रायोरिटी होती है ना, तो वो यही होती है कि डीजे कौन है। क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ पर हम देखते हैं कि मोस्टली लोग बॉलीवुड को थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने कितनी जानी, लोगों को क्या पसंद आता है और उस हिसाब से आपने म्यूज़िक पे कितना ध्यान दिया है? देखो, जब हम इंडियन फेस्टिवल त्योहारों की बात करते हैं तो बॉलीवुड एक म्यूज़िक एक अकेला ऐसा म्यूज़िक है जिससे छोटा हो, बच्चा हो, बड़ा हो, जेनजीस क्राउड हो या एजेड क्राउड हो, हर कोई बंदा बॉलीवुड म्यूज़िक पे एंजॉय करता है। तो हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे कलाकार, अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट, डीजेस को एक अच्छा प्लेटफॉर्म, जो उनके लिए शायद उससे बड़े प्लेटफॉर्म्स होंगे पर हमारे क्राउड के लिए अगर वो लोग उस समय पे, हम कोशिश करते हैं बुला के उनको एंजॉय करा सके। इस बार जैसे हम लोग 4 डीजे बुला रहे हैं, जिसमें से एक बड़ा नाम डीजे लीजो जॉर्ज, बॉलीवुड सेलिब्रिटी आर्टिस्ट है, वो अहमदाबाद में आप सब लोगों के बीच में आ रहे हैं। डीजे ज़्लोट्रॉन अहमदाबाद का ही बंदा है, लड़का है, वेरी स्मॉल इन एज बट डूइंग फैंटास्टिक जॉब, बहुत अच्छे से तरीके से वो पकड़ रहा है क्राउड को। फिर डीजे जायरो है, वो बेंगलोर से आ रहे हैं, उसके बाद में डीजे बोनी अगेन अहमदाबाद से हैं। तो देर आर दो आर्टिस्ट हैं जो बाहर से बुलाए हैं और जो बहुत अच्छे तरीके से बॉलीवुड को समझते हैं, उधर म्यूज़िक क्रिएट करते हैं, खुद का म्यूज़िक कंपोजिशन करते हैं। जी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोगों को, सब लोगों की प्लेस के बाद की प्रायोरिटी यही रहती है कि डीजे कौन है, सॉन्ग्स कैसे होंगे, म्यूज़िक कैसा होगा ना। अभी हम बात करें रेन डांस की, तो ये पार्टी प्लॉट में जो भी अभी होली पार्टीज़ होती हैं उसमें रेन डांस बहुत कंपलसरी हो गया, ऐसा कह सकते हैं। उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए भी कितनी मेहनत लगती है भरत जी? काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ती है इसके अंदर। रेन डांस का सेटअप करना इतना मुश्किल नहीं है, पर उसका ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके से आउट होगा, गार्डन को, पार्टी प्लॉट को या वो लॉन एरिया को बिना ख़राब करे किस तरीके से उसको मैनेज करना है, उसके लिए थोड़ा टेक्निकली चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है। एक ये अच्छी चीज़ है। और दूसरा, जब हम आर्टिस्ट की बात कर रहे थे, मैं एक चीज़ बताना भूल गया पर मुझे रियलाइज़ हो रहा है, इस बार वी आर कमिंग अप 100 नासिक ढोल के साथ में। तो इस बार वो जो वाइब होगी वो कुछ अलग लेवल की होगी। म्यूज़िक विथ 100 नासिक ढोल एक साथ प्ले कर रहे हैं, उसकी कुछ वाइब भी अलग होगी जी। और दैट उसके साथ में रेन डांस और पानी का, कलर्स का, गुलाल का बहुत तरीके से एंजॉयमेंट करने का तरीका बढ़ सकता है। जी जी जी, मैं अभी वो नासिक ढोल वाले कंसेप्ट पे ही आ रही थी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ना अट्रैक्टिव लग रहा है, लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। जहाँ भी आपके लाइक पासेस या आपके बोर्ड्स, होर्डिंग्स देख रहे हैं, उसमें जहाँ 100 से ज़्यादा नासिक ढोल देख के लोग बहुत ही एक्साइटेड लग रहे हैं। तो आपका क्या मानना है, मतलब म्यूजिक के साथ ये नासिक ढोल होली के रंग में कितना और ज़्यादा रंग जमा देता है? देखो, इमेजिनेशन अभी जिस हिसाब से मैं कर सकता हूँ जी, मैं सिर्फ वो फील कर पा रहा हूँ कि जब 100 नासिक ढोल एक साथ में वाइब करेंगे वो ग्राउंड पे म्यूजिक के साथ में, तो वो गूज बम क्रिएट करने वाला मोमेंट होगा, ऐसा मैं फील कर पा रहा हूँ कि वो क्राउड का जो एकदम उत्साह होगा वो कुछ अलग लेवल पे होगा। बाकी कल का ही दिन है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और हम भी ये इमेजिनेशन कर सकते हैं कि जब 100 नासिक ढोल और डीजे हो तब मतलब मज़ा ही अलग होगा। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि इतने सारे बड़े बड़े इवेंट्स में भी, जहाँ भले ही क्यों ना डीजे हो, लेकिन लोग अभी भी ढोल पे नाचना ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ तो 100 नासिक ढोल हैं जो शायद दूसरी पार्टी से कुछ अलग हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें, म्यूज़िक की बात हमने करी, तो अभी मैं ये भरत जी पूरा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको जानना चाहूँगी कि ऑर्गेनाइज करने में अगर हम कोई भी इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं तो सारा ही मतलब यहाँ पे काफ़ी सारी ये भी होती है कि सारा ऑर्गेनाइज करने के लिए पार्किंग देखना पड़ता है, स्टॉल्स देखने पड़ते हैं, जैसा आपने कहा पानी के लिए ड्रेनेज है या नहीं, पानी ख़त्म हो जाए या नहीं, लोग रिव्यू सही देने चाहिए, कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितनी सारी परमिशंस लेनी पड़ती हैं? सच बताऊं तो कम से कम पहले तो ये ऑर्गेनाइज करने के लिए, इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, इतने सारे क्राउड का मैनेजमेंट करने के लिए हमारे को बाकी सब काम छोड़ के सिर्फ 3 महीने इसी इवेंट पे फोकस करना पड़ता है, जिसमें सिर्फ अकेले मेरे बस की बात नहीं या मेरे पार्टनर की बस की बात नहीं, इसमें पूरी की पूरी मेरी टीम 22 लोगों की मेरी पूरी कोर टीम, उसके अलावा देर आर बहुत सारे लोग, बहुत सारे अदर फ्रीलांसर्स जो इन्वॉल्व होते हैं हर एक चीज़ के लिए, मेरे बहुत सारी एजेंसीज वेंडर्स इन्वॉल्व होते हैं हर चीज़ मैनेज करने के लिए। अब अगर मैं मैनेजमेंट स्टार्टिंग से बात करूं तो वेन्यू ढूंढने से लेके क्राउड को क्या इजी पड़ेगा, वो क्या लेवल पे सोच सकते हैं, उनको क्या चीज़ पसंद आएगी, क्या चीज़ नहीं पसंद आएगी, अगर हम रेन डांस करते हैं तो उसको कैसे मैनेज करेंगे कि वेन्यू को लॉस ना हो, अगर हम इतना क्राउड को लाते हैं तो पार्किंग को किस तरीके से मैनेज करेंगे कि किसी को ऐसा नहीं लगे कि वो आके फंस गया है, उनको एक्साइटमेंट फील होना चाहिए और वही एक्साइटमेंट से वो जैसे आते हैं वैसे ही जाने चाहिए। तो वो एक्साइटमेंट लेवल को कैसे बरकरार रखेंगे, वो कांस्टेंट 10 दिन 15 दिन की किस तरीके से उसको इवेंट का बिल्टअप होगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होगी, कैसे लोगों को पता चलेगा कि हम दुनिया से अलग कैसे हैं। अगर आप नोटिस करोगे लास्ट 3 साल से हम सबसे महंगे, हमेशा से अगर मैं होली की बात करूं कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारी होली सबसे एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि वी बिलीव इन क्वालिटी, हम लोग क्वालिटी पे विश्वास रखते हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ लोग आए उनको वो पूरा फील आना चाहिए कि वो एक त्यौहार को अपने परिवार के साथ में अच्छे से विद पूरी सिक्योरिटी के साथ, अच्छे कलर, अच्छे आर्टिस्ट के साथ एंजॉय करें। जी, तो आपके यहाँ से कलर्स भी अवेलेबल करवा रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग भी ऐसे होते होंगे कि जिन लोगों को कलर्स नहीं भी लेके आते होंगे, तो वो भी एक अवेलेबिलिटी लोगों को मिलेगी। और सेकंड थिंग कि आपने बात की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, बात जब होली की हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है नवरात्रि से भी ज़्यादा होली में लोग ये थोड़ा उनके लिए प्रायोरिटी बढ़ जाती है सेफ्टी की, तो उसके लिए भी आपने कितनी तैयारियां की है? सेफ्टी के लिए हमारे पास में मेल फीमेल दोनों की बहुत अच्छी सिक्योरिटी टीम है। पार्किंग के लिए हमारे पास में सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। उधर कुछ न्यूसेंस ना आवे तो ग्राउंड मैनेजमेंट में हमारे कोर टीम के बहुत से लोग ग्राउंड टीम पे भी अवेलेबल रहते हैं, प्लस उनके नीचे फ्रीलांसिंग टीम, प्लस उनके नीचे सिक्योरिटी टीम, सो दैट किसी भी तरीके का कोई केओस ना हो, और अगर कोई केओस बाई चांस अगर होता है तो वी कैन मैनेज इट वेल, कि किसी को कोई तरीके की तकलीफ या हार्मफुल चीज़ नहीं होनी चाहिए। जी, भरत जी, इसी के साथ एक ऑर्गेनाइजर की तरह से आपको क्या लगता है कि मतलब सिर्फ आगे के दिनों में नहीं, तैयारियों में नहीं, ड्यूरिंग इवेंट भी कितना अलर्ट रहना पड़ता है और आपकी कितनी तैयारियां हैं? क्योंकि काफ़ी सारे आपके मतलब पासेस लोगों के पास पहुंच चुके होंगे, और जब से ये 100 से ज़्यादा नासिक ढोल के बारे में सुना है, तब से लोगों के लिए अभी ये पार्टी अटेंड करना बहुत ज़्यादा लोगों के लिए प्रायोरिटी में आ चुका है। तो क्या लगता है आपको ड्यूरिंग द इवेंट भी आपको कितना अलर्ट रहना पड़ेगा? देखो, जहाँ तक मुझे याद है कि ये तीसरा साल है, इस 3 साल में मुझे ध्यान नहीं कि मैंने खुद ने पर्सनली होली के म्यूजिक पे कितना डांस किया होगा आखिरी के आधे घंटे के अंदर के अलावा, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान और पूरा फोकस पॉसिबल ही नहीं हो पाता होगा। पॉसिबल मतलब अगर स्पेस मिलता भी है ना, तो भी वो दिमाग में वही चलता रहता है कि मेरा क्राउड खुश है कि नहीं है, मैं क्राउड के चेहरे देखता रहता हूँ कि वो लोग एंगेज हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। तो उस हिसाब से आप कुछ चेंजेस भी करते रहते हैं ड्यूरेशन, जब ड्यूरिंग द इवेंट के हाँ यहाँ पे कुछ ये चेंज करने की जरूरत है या म्यूजिक चेंज करने की जरूरत है? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आपने सही पकड़ा है कि कोई भी तरीके से अगर हमारे को लगता है कि कहीं हम थोड़ा सा भी 1% भी फेलियर चांस पे जा रहे हैं कि हमारा क्राउड मजा नहीं कर पा रहा है, हम लोग क्विक एक्शंस, क्विक डिसीजंस लेके हम लोग बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस लाते हैं, इन केस इफ वी फील की चीज़ें जैसा हम सोच रहे वैसे वाइब क्रिएट नहीं आ रही है। बाकी अंत में तो हमारे को यही सुनना है हर क्राउड के मुंह से कि इससे अच्छी होली और कहीं नहीं हो सकती। आपका पहले की मतलब ये तो रंगोली 3.0 है, मैं ये 1 और 2 के बारे में जानना चाहूँगी, कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका? इससे पहले वाला होली हमने कर्नावटी क्लब में किया था, और अगर आप लास्ट ईयर का चार्ट देखते हो, शायद पूरे अहमदाबाद में ऐसा कोई मीडिया चैनल या ऐसा कोई हाइप सोशल मीडिया नेटवर्किंग नहीं होगा जिसमें हमारे इवेंट का नाम नहीं आ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब इस तरीके से वो इवेंट को हाइप किया गया था, उस तरीके से वो इवेंट को मैनेज किया गया था कि प्री और पोस्ट इवेंट में होली हो तो रंगोली जैसी ऐसे स्टेटमेंट्स
कुछ मेरे पास में आए, शायद कुछ मुझे खुश करने के लिए बोले होंगे, पर हर कोई मुझे खुश करने के लिए नहीं बोलेगा, ऐसा मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। और वही उत्साह से हम कोशिश कर रहे हैं तो उसकी सक्सेस वैसे ही दिखती है ना कि आप एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी तभी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जब आपको रिव्यू अच्छे मिल रहे हैं। सच बोल दूं, अगर मैं आपको, भले मैं एज अ इवेंट मैनेजर, होली त्यौहार या होली का इवेंट मेरे लिए इट्स नॉट बिजनेस। मुझे बस ऐसा है कि आप अगर होली के बारे में अगर आप समझोगे तो पूरे देश में हर जगह पे जो होली बनती है उन सब के पीछे अलग अलग रीजंस है। कहीं लठमार होली चलती है, कहीं कृष्ण भगवान के लिए होली चलती है, कहीं प्रहलाद स्टोरी पे होली चलती है। तो हर किसी का होली बनाने का एक उद्देश्य, तरीका अलग है। मेरे लिए होली एक अच्छा फैमिली गेट टुगेदर इवेंट है जिसको सब अपने दोस्त परिवार साथ में मिलके कलर और म्यूजिक और अच्छे खाने के साथ में एंजॉय करते हैं। उनको एक अच्छी जगह, अच्छी वाइब्स देना मेरे लिए फ़र्ज़ है। जी जी बिल्कुल, मतलब ये आपका उद्देश्य अच्छा है, इसीलिए शायद ये आपकी जो होली पार्टी होती है वो लोगों को ज़्यादा पसंद भी आती है। ये जो आप पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसमें ऑर्गेनिक कलर्स के बारे में आपका क्या मानना है? आज के टाइम पे हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कलर्स का जो उपयोग होता है, कई बार ऐसे कलर्स भी होते हैं जो लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। हम लोग ये बहुत ही प्रयत्न कर रहे हैं कि लोग ऑर्गेनिक कलर को लेके जागरूक रहें। आपका भी इस बारे में क्या मानना है? बिल्कुल सही बात है। गलत तरीके का कलर अगर कोई यूज़ होता है स्किन पे तो स्किन प्रॉब्लम्स वगैरह बढ़ सकती है। तो हम मेक श्योर करते हैं कि हमारी तरफ से जो कलर दिया जाता है द टाइम ऑफ एंट्री वगैरह पे, और जो हम अंदर रखते हैं वो प्रॉपर अच्छा ऑर्गेनिक गुलाल हो। और उसके अलावा हम लोग पक्के कलर को, सिक्योरिटी पे क्लियर इंस्ट्रक्शन होते हैं, पक्के कलर किसी भी क्राउड के साथ में अंदर एंट्री नहीं देने देते। अगर कोई लाया होता है तो उसको बाहर ही निकाल दिया जाता है। That's good. और हमने जो अंदर कलर के स्टॉल्स भी रखे हैं, जो वो लोग बेचेंगे, जो स्टॉल्स वाले वेंडर्स हैं, उनको भी प्रॉपर एक अपडेटेड रहता है कि उनको जो कलर रखना है वो ऑर्गेनिक कलर ही होना चाहिए, अदरवाइज वो कलर नहीं बिकेगा। जी जी। अब भरत जी, जब भी कोई किसी भी पार्टी में आता है ना, खास करके अगर हम अहमदाबाद की बात करें ना, तो नाचने के साथ साथ खाने पीने की मज़ा तो उन्हें करनी ही होती है। खाने पीने के बिना कोई भी पार्टी, कोई भी फंक्शन, कोई भी फेस्टिवल अधूरा है। तो आपके यहाँ पर खाने पीने के स्टॉल्स कैसे देखने मिलेंगे लोगों को? और इसी के साथ जब बात होली की है तो पानी की भी व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है, इनफ वाटर बॉटल, और इसके भी स्टॉल्स वहाँ पर देखने मिलेंगे। हमने फूड और ड्रिंक्स के काउंटर्स लगा रखे हैं, एक हमारे कैफ़े पार्टनर कॉफ़ी स्टोरीज़ के साथ में। और उनके स्टॉल्स में यूजुअली होली के समय पे हाथ थोड़े से ख़राब रहते हैं, तो लोग प्रेफर करते हैं कि वो स्पून से, चम्मच से खाना ज़्यादा अच्छे से प्रेफर करते हैं। तो हमने उस तरीके से आइटम रख रखी है खाने के अंदर जो उनके लिए इजी, कन्वीनियंट हो खाने के लिए, उनको इशू नहीं है। पानी की फैसिलिटी है, एनर्जी ड्रिंक की फैसिलिटी है, उसके अलावा मॉकटेल्स, पीच आइस टीज एंड अदर आइस टीज, कोल्ड कॉफ़ीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं जिधर उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होली के समय पे ही वो वहाँ पे स्टॉल से परचेस करके और अच्छे से एंजॉय करते करते म्यूजिक के साथ में दे कैन हैव इट। जी। कई बार ऐसा होता है कि जब होली का इवेंट हो, नवरात्रि में भी होता है, होली के इवेंट में ना बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि या तो लोगों के झगड़े हो जाते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपकी टीम कैसे अलर्ट रहेगी? बिकॉज क्या होता है ना कि जब हम एक अच्छी पार्टी में जाते हैं तो फैमिली के साथ जाते हैं, तो हमारी ये प्रायोरिटी रहती है कि फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से क्राउड भी ऐसा रहे। लेकिन एज ऑर्गेनाइजर हमें नहीं पता होता है कि हम जैसे भी पासेस पहुंचा रहे हैं वो पासेस कहाँ से कहाँ, कितने लोगों के पास और कैसे लोगों के पास जा रहे हैं। तो इन केस अगर ऐसा कुछ होता भी है तो आप ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपकी टीम कैसे तैयार है? देखिए, ये बात आपने सही बोली। हम पासेस अलग अलग सोर्सेज के थ्रू सेल करते हैं, अलग अलग सोर्सेज के थ्रू इनवाइट करते हैं, तो नहीं पता होता है कि कौन उस पास से आने वाला है। बट हमारी सिक्योरिटी टीम एंट्री पे बहुत तरीके से स्ट्रांग रहती है कि अगर हमारे को कोई भी लेवल पे कोई न्यूसेंस या कोई भी इलीगल किसी भी तरह का किसी ने नशा किया हो, ऐसा कोई भी बहुत भी देखने ऐसा मिलता है नशा वाला काफी फीलिंग parties आता है तो हम लोग स्ट्रेट अवे, अगर कोई ऐसा भी बोलता है कि हमने पास खरीदा तो हम वापस पास का पैसा देना पसंद करेंगे। पर हम हमारे पारिवारिक दोस्त यार क्राउड में हम ऐसा कोई भी इंसान को अलाउ करना पसंद नहीं करेंगे जिसने कोई भी तरीके का कुछ भी नशा या ऐसा कुछ कर रखा हो। वो हम बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि जब क्राउड की हम बात करते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर ये क्राउड मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो वो इवेंट सक्सेस की जगह कब केओस में बदल जाती है पता नहीं चलता। तो हम बहुत तैयारी के साथ रहते हैं कि अगर हमारे को कहीं भी अलर्ट लगता है कि ये चीज़ में कहीं कंसर्न आ सकता है, हम बिल्कुल चांस नहीं लेते हैं। फिर हम अपोलोजाइज कर लेंगे, बट हम लोग एंट्री उस पर्टिकुलर इंसान को नहीं देते। और नॉर्मल पासेस और यहाँ पर जैसा हम देख रहे हैं वीवीआईपी पासेस भी अलग हैं, तो क्या खास है दोनों में, क्या डिफरेंस है?
देखो वीआईपी पास के अंदर स्टेज से जस्ट क्लोजर जो सबसे नज़दीक वीआईपी पासेस का जो एंट्री है वो उधर रहते हैं। जनरल पासेस का एंट्री उनके पीछे की तरफ रहते हैं। उसके अलावा हमारा एक वीआईपी टेबल्स का भी जोनर है कि बहुत सारे ऐसे परिवार के लोग होते हैं कि हमारे घर साथ में बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं जो क्राउड में खड़े नहीं रह सकते, तो उनके लिए एक वीआईपी टेबल्स का भी स्कोप रखा गया है। जी ओके, इसके साथ पासेस की अगर बात हो तो हम ये देखते हैं हमेशा कि ना कुछ दिन पहले से ही आपको बहुत सारे कॉल्स आने लगते होंगे, तो वो कैसे टैकल करते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजर के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। आपने जैसा कि कहा कि आपके लिए बिजनेस नहीं, बट स्टिल हमें सब कुछ अरेंज तो करना है। तो जब खुद के फ्रेंड्स, खुद की फैमिली, इनके जितने कॉल्स आने लगते हैं, तो ये सब कैसे मैनेज होता है? और ये अभी आपके साथ हो भी रहा होगा। देखो मैंने जैसे आपको पहले ही बोला कि मेरे लिए बिजनेस से ज़्यादा मेरे लिए एक होली का त्यौहार सबके साथ बनाने का एक वो मन में एक इच्छा है, और उसी के लिए ही हमारी पूरी टीम मेहनत करती है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे जानकार, रिश्तेदार, दोस्त यार को हम ऐसे इनवाइटी बुला लेवे जब उनसे उनका पहले फ़ोन आवे उससे पहले, पर कहीं ना कहीं बड़ा कॉस्ट लगता है, बड़ा इम्पैक्ट लगता है, तो हम लोग थोड़ा प्लानिंग के साथ में मैनेज करते हैं चीज़ों को। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली ये होता होगा कि कॉल्स आते होंगे, एक तो अरेंजमेंट के कॉल्स होंगे और दूसरे पासेस के कॉल्स। मत पूछिए आप, कितने फ़ोन दिन के उठते नहीं है, कितने पे कॉल बैक नहीं कर पाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। जी, तो अभी आप अहमदाबादियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि अहमदाबाद में किसी भी फेस्टिवल का जो उत्साह होता है वो लोगों में ज़्यादा देखने मिलता है? आप 3 साल से ये कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि मोस्टली हमारे यहाँ के लोग ऐसी पार्टीज़ को ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजर के मन में होता है कि उसका क्राउड अच्छा हो, वो भी इतना एंगेज रहे, वो भी इतना एंजॉय करे। तो आप अहमदाबादियों के बारे में उसके रिगार्डिंग क्या कहना चाहेंगे? देखो अगर अहमदाबाद की बात करूं और लास्ट 4 साल की अगर मैं बात करूं, तो आपने देखा होगा ऐसा कोई बड़े से बड़ा आर्टिस्ट नहीं है जो अहमदाबाद या गुजरात ट्रैवल नहीं कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पे वो लेवल का उत्साह, वैसा वहाँ लोग वो लेवल का क्राउड है जो हर चीज़, हर म्यूज़िक को एंजॉय करना जानता है। अहमदाबादीज आर बेस्ट इस पर्टिकुलर चीज़ में। कोई भी त्यौहार हो, कोई भी सेलिब्रिटी आता हो, कोई भी आर्टिस्ट आता हो, वो सबको उतना ही मान सम्मान से इज्जत देते हैं और वो सब लोग उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। खाली एक रिक्वेस्ट कर लूँगा, होली का इवेंट थोड़ा सा न्यूसेंस इवेंट की तरफ हमेशा से लोग गिनते हैं, जाना जाता है, बट अगर हम किसी को डिस्टर्ब करे बिना अपने परिवार के साथ में म्यूज़िक एंजॉय करते हुए करें तो ये त्यौहार भी नवरात्रि से कम नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हर एक इंसान खुद इस बात को समझे, तो मेहनत भी नहीं लगती और ना ही ऐसा न्यूसेंस होता है। आप सारे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आपके पासेस किस तरह से कहाँ अवेलेबल हैं? जिन्हें इस पार्टी में जाना हो, आप इस प्लेटफॉर्म से उन्हें कैसे इनवाइट करना चाहेंगे, कैसे वेलकम करना चाहेंगे? हमारे पासेस बुक माई शो में ऑनलाइन अवेलेबल हैं, रंग होली 3.0 YMCA, और उसके अलावा शोमेट्स में भी अवेलेबल है। अगर कोई शोमेट्स ऐप यूज़ करता है तो उसमें से भी कर सकता है। उसके अलावा ऑफिस के अंदर 9723817234 पे भी वो कनेक्ट करके ऑफलाइन पासेस ले सकते हैं। जी, और सारे आपके यहाँ पर आने वाले लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस पार्टी में लोगों को क्या अलग देखने मिलेगा? दे विल गोना रॉक, कैसे कहना चाहेंगे आप? बस मैं तो कहना चाहूँगा, उत्साह से आइएगा। 100 नासिक ढोल का मज़ा, सेलिब्रिटी डीजेस है, डीजे लीजो जॉर्ज है, डीजे जायरो है, डीजे जिलोट्रॉन है। आइए, पूरा अच्छे से मज़ा लाइए, अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ आइए। पक्का कलर नहीं लाइएगा, और एक अच्छे माइंडसेट से इस त्यौहार को एक अच्छे उत्साह के साथ में बनाते हैं, रेन डांस की वाइब और ढोल की वाइब के साथ में। जी बिल्कुल। तो भरत जी, यहाँ पर समय खत्म हुआ है हमारा, और आप जो ये ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं पार्टी, वी होप कि ये बहुत अच्छी पार्टी रहेगी। ऑल द बेस्ट फॉर द इवेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। તો કરંટ ટોપિકમાં આજે આપણે વાત કરી છે કે જ્યારે રંગમાં રંગાશે રંગરસિયાઓ અમદાવાદીઓ, ત્યારે એમની માટે આ ખાસ જે પાર્ટી ઇવેન્ટ છે કે જે YMCAમાં થવા જઈ રહી છે, જેનું નામ છે રંગોળી 3.0. આમની ત્રીજી વખતની આ પાર્ટી છે. એના પહેલાંની પણ બંને પાર્ટીઝ એમની રોક રહી છે, અને આ વખતે 100 નાસિક ઢોલની સાથે ડીજેના તાલ પર ઝૂમવા માટે આઈ હોપ આપ સૌ પણ તૈયાર થઈ ગયા હશો ને. જે રીતે એમની સાથે વાત કરી છે તે રીતે આપણને લાગે છે કે જેટલા પણ લોકો ત્યાં જશે એ લોકો ચોક્કસપણે બહુ જ મજા કરશે, અને તેમની સાથે એમની જે એક્સાઇટમેન્ટ છે એ ક્યાંય એવું નહીં લાગે કે એમને જેટલી પણ ઘણી બધી બાબતોની જે એક્સાઇટમેન્ટ એમને હતી એમાં ક્યાંય એમને કંઈ ઓછું લાગ્યું હશે. કરંટ ટોપિકમાં અત્યારે બસ આટલું જ. ફરીથી મળીશું એક નવા વિષયની સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.